Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good, enjoying your online classes also. So children, as you all are aware that we have started our unit 1, which is the natural world. Natural world, we consider our environment, plants, animals, whatever present in our surrounding in natural world. So in that row we have done different animals also, different birds also related to our natural world. So children, as you all are aware that plants are the major part of our natural world. Plants, we have different kind of a plants and we are getting different kind of things from plants, and they are our most important part of natural world. So today we will study few things about some useful plants. So before I start the chapter, first of all, now in plants we will consider both in that we will consider herb also, shrub also and tree also, and we will find it out what are the different things, how these plants are useful for us and what are the different things we are getting from these plants. So that is so let's start what are useful plants. So first of all I want to ask from you that what are the plants or trees you see near your surrounding. So whatever name you will take it, that I'll write it on the board. Fine. So which different trees you find it out in your surrounding. If I'll ask, you will tell me the name of that trees, like neem, and what else, mango tree, and what else you can find it out in your surrounding, what different tree you are finding out in your surrounding. So neem, mango, and then we often found it different other trees also. So the now neem is also very much useful for us. How neem is a disinfectant also. आपने वो देखा होगा ना सोप का एडवर्टीजमेंट, नीम का सोप, मार्गो एंड मेडिमिक्स हैज द क्वालिटी ऑफ नीम, ऐसे ऐसे करके ना नीम का आपका आता है. तो नीम इज एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट. तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करती है. इनफैक्ट नीम की जो लीव्स होती है उसको हम स्टोरेज में भी यूज़ करते हैं. कैसे स्टोरेज में, लाइक हमें जो वीट है जो कंटेनर्स में हम भर के रखते हैं, सो इफ विल पुट नीम लीव्स इन दैट ना, तो वो क्या होता है, वो खराब नहीं होता है. सो दीज आर यूजफुल थिंग्स अबाउट नीम. और मैंगो तो पता ही है आपको, दैट मैंगो से वी मेक पिकल. मैंगो हम वैसे भी खाते हैं, वी एट different kind of mangoes. So these are few common trees which you find in your surrounding and we utilize these trees a lot. और mango की जो leaves होती है उसको हम when we have a पूजा तो उसका भी ऐसा तोरण सा बना के we hang in our at home ना. So that is there. Now useful plants, today we will study. अभी मैंने आपको 2 plants के बारे में बताया, neem and mango tree, and how they are useful. थोड़ा सा इसका uses बता दिए. Now we'll see that page number 36 which is again related to useful plants. We will read out about one of the tree which is given or one of the plant one by one, and then we will categorize and whatever uses which are given in your book, apart from that हम उसको ये भी समझेंगे कि और कहाँ यूज होता है. ठीक है, और कहाँ कहाँ और क्या क्या यूजेस है उसके, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन आर पेज नंबर 36. सो दिस पेज कंटिन्यूज टिल 37. पेज नंबर 36 पे भी है थोड़े से यूजफुल प्लांट्स और पेज नंबर 37 पे भी है. सो विद इन 1 day it is not possible to complete it. So we will do 2-3 plants today and rest of the plants tomorrow. So let's start children. Our first plant, that is coconut tree. Useful plants में first is coconut trees. So before I read out what is given in your book,
So just tell me what are the different uses of coconut tree. Have you seen coconut trees? Have you seen coconut trees? अभी कोकोनट ट्रीज जो होते हैं वो अभी नाउ तो वी आर एबल टू सी इन प्लेन एरियाज ऑल्सो, बट दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सी एरियाज, सी शोर, जहाँ पे समुद्र वाला एरिया होता है, ह्यूमिड वेदर होता है. नॉर्मली वी फाइंड इट आउट इन सी एरिया, सी शोर, और जहाँ पे भी जो भी जहाँ सी समुद्र का किनारा लगता है वहाँ पे वी फाइंड इट आउट कोकोनट ट्रीज मोर. इनफैक्ट इन साउथ, जो हमारा इंडिया में साउथ है, लाइक केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब एरियाज में कोकोनट ट्रीज आर ऑफनली फाइंड इट आउट, क्योंकि वो नीचे वाला एरिया जो है वो पूरा किसके साथ, ओशन के साथ लग रहा है, तो वहाँ पे वी कॉमनली फाइंड इट आउट दिस कोकोनट ट्री. आप now what is useful about coconut tree? If you went for eating dosa, अगर आप कभी पहले भी कभी आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो फॉर ईटिंग डोसा, सो आपने वहाँ पे एक चटनी खाई होगी. दैट इज किसकी चटनी है? यू हैव आस्क्ड फ्रॉम योर मदर ऑल्सो, ये मम्मा ये किसकी चटनी है? तो मम्मा ने क्या बोला? अच्छा ये कोकोनट की चटनी है. तो आपके दिमाग में क्या होता होगा, इतना बड़ा कोकोनट, उसकी चटनी कैसे बन जाती है? विल श्रेड इट, उसको कट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको ग्राइंड करने के बाद देन वी विल मेक अ चटनी ऑफ दैट कोकोनट. तो ये तो हो गया एक यूज. कोकोनट इज अ ट्री जिसका ऑलमोस्ट ईच पार्ट इज यूटिलाइज. ईच पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री कैन बी यूटिलाइज. मीन्स इफ यू हैव सीन कोकोनट ट्री, लंबा सा ऐसा बड़ा सा पेड़ होता है, उसमें ऐसे ऐसे लीव्स निकली है और उसके नीचे ऐसे राउंड 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 ऐसा होता है कुछ. सी ऐसा लंबा सा ऐसा पेड़ होता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लंबा सा पेड़ होता है, और यहाँ पे इसकी ऐसे लीव्स होती है. लीव्स आर देयर, फाइन, ऐसे लीव्स होती हैं, और यहाँ पे कोकोनट लगे रहते हैं. इसके यहाँ पे कोकोनट लगे रहते हैं, और ये कोकोनट ट्री का ईच पार्ट कैन बी यूटिलाइज. कैसे? इसका ईच पार्ट कैसे यूटिलाइज करता है? इफ यू वेंट टू सम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, अगर किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो दे आर सर्विंग फूड ऑन कोकोनट लीव बिकॉज दे आर क्वाइट फ्रेश. वो उसको कट करते हैं कोकोनट लीव्स को, उसको वॉश करते हैं, एंड देन दे आर सर्विंग फूड ओवर इट. अगर आप साउथ इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया, अगेन दैट पार्ट ओनली केरला एंड तमिलनाडु, उड़ीसा, वो वाला जो पार्ट है, आप अगर वहां पे जाओगे देन यू फाइंड इट आउट कि वहां पे ऐसे कोकोनट ट्री के ये जो लीव्स है उसको कट करके ऐसे करके लीव्स को प्लेट की तरह सर्व करते हैं. लीव्स को ऐसे प्रॉपर शेप में कट करके, एंड देन दे आर सर्विंग एज अ प्लेट, और वो दे आर सर्विंग फूड ओवर इट. अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ये मानना है कि दैट लीव जो है वो सबसे ऊपर लगा हुआ है ट्री पे, तो वो वहाँ पे बिल्कुल प्योर है, नोबडी हैज टच्ड इट, बिल्कुल प्योर है, उसको वॉश करके वी कैन यूज. और वो क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इट डजेंट मीन कि आप घर पे भी ला के केले के पत्ते पे हम खाना खाने लगे, नहीं. सो दे फाउंड इट, वहाँ पे बहुत ईजिली वो मिलता है इन साउथ इंडिया. दैट्स वाई दे आर यूटिलाइजिंग इट अलॉट. ठीक है. अभी ईच पार्ट ऑफ कोकोनट, ये तो हो गया कि हम उससे चटनी भी बना सकते हैं, हम वी कैन यूज द लीव्स ऑल्सो. कोकोनट वाटर भी आपने पिया होगा, होते कोकोनट अभी वाटर तो यू आर गेटिंग एवरीवेयर. अभी वाराणसी में पहले नहीं मिलता था, बट नाउ वी आर गेटिंग ऑन एवरी टर्न नियर आवर सराउंडिंग ऑल्सो. अपने घर के आसपास भी आप देखो तो एक नारियल पानी वाला मिल जाएगा आपको. सो अभी इसके कोकोनट ट्री के डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द यूजफुल थिंग्स अबाउट कोकोनट ट्री, वो हम देखेंगे. फाइन. नाउ द फर्स्ट इज ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ कोकोनट ट्री आर यूजफुल. एज आई टोल्ड यू कि कोकोनट ट्री के सारे पार्ट, ईच पार्ट ऑफ दैट कोकोनट ट्री इज यूजफुल. नाउ फर्स्ट थिंग विच वी कैन यूज, दैट द ट्रंक इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर. नाउ ट्रंक मीन्स दिस पार्ट, जो इसका
ट्रंक मीन्स तना जो होता है, ये तना का जो वो लॉग जैसा होता है, लकड़ी का जो लट्ठे जैसा जो होता है, लॉग का जो पार्ट है, दैट इज यूज टू मेक फर्नीचर. तो ट्रंक इज फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर, यूज्ड टू मेक फर्नीचर. नाउ कोकोनट ट्री का जो ट्रंक वाला पार्ट है, this one part is used to make furniture. This trunk का जो ये मोटा वाला पार्ट है, that is used to make furniture. Now next we eat the coconut fruit. कोकोनट फ्रूट भी आप करते हैं, खाते हैं उसको, मिलता है ना, हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं जो ऐसे, उसको बाद में छील करके उसको तोड़ करके एंड देन वी आर ईटिंग इट. तो कोकोनट फ्रूट भी हम खाते हैं एंड इट गिव्स अस ऑयल ऑल्सो. कोकोनट ट्री भी हमारे पास, कोकोनट ऑयल भी हम वी आर बाइंग इट एंड देन वी आर पुटिंग इन इट इन आवर हेयर ऑल्सो. तो कोकोनट ऑयल का अभी कितना पार्ट यूज हो गया कि वी ईट कोकोनट फ्रूट, ईट कोकोनट फ्रूट. ठीक है, अभी कोकोनट का फ्रूट भी हम खाते हैं एंड वी यूज कोकोनट ऑयल ऑल्सो. कोकोनट ऑयल ऑल्सो, कोकोनट का ऑयल भी यूज कर लिया. अब ये जो कोकोनट का फ्रूट है, इसी से हम क्या बनाते हैं, इससे हम चटनी भी बनाते हैं. अदर डिशेस में भी वो कोकोनट क्या होता है, ग्राइंड करके हम यूज करते हैं. अच्छा, इसको हम विल यूज इट एज अ ड्राई फ्रूट ऑल्सो. और इससे स्वीट्स, ड्राई फ्रूट एंड स्वीट्स में भी यूज होता है. स्वीट्स मतलब मिठाई में भी हम कोकोनट को यूज करते हैं, मिठाई में भी कोकोनट यूज किया जाता है. सो नाउ द नेक्स्ट इज ऑल्सो कोकोनट वाटर मेक्स फॉर अ कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक. अब कोकोनट वाटर एज आई टोल्ड यू दैट रिफ्रेश. और बहुत सारी डिजीजेस भी ऐसी हैं, बहुत सारी डिजीजेस में भी दैट कोकोनट वाटर इज वेरी यूजफुल. जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स हमारी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी मतलब आवर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड एट ऑल, मतलब पानी प्रॉपर अमाउंट में पानी हमारी बॉडी में नहीं है, तब हम बोलते हैं आवर बॉडी इज गेट डिहाइड्रेटेड. तब उस केस में डॉक्टर आर रिकमेंडिंग टू ड्रिंक कोकोनट वाटर. ये एक कोकोनट वाटर आपको डेली पीना है, सो दैट आपकी बॉडी जो है इट विल नॉट गेट डिहाइड्रेटेड. पानी हम पीते हैं तो दैट विल नॉट बी रिटेन बाय आवर बॉडी. पिया और फिर वो वापस हमारा पानी इट विल नॉट बी रिटेन. हमारी बॉडी जब वीक हो जाती है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी. तब उस केस में वी विल ड्रिंक कोकोनट वाटर. और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, व्हेन वी ड्रिंक ठंडा ठंडा कोकोनट वाटर आप पीते हैं तो हमें क्या लगता है, ओह वाह रिफ्रेश हो गए हम, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ जाता है ना. तो दैट इज व्हाट दैट कोकोनट वाटर रिफ्रेशेस. नाउ कोकोनट फाइबर इज कॉल्ड कॉयर. नाउ कोकोनट फाइबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, नारियल जो हम घर पे पूजा में हम यूज करते हैं, तो उसके ऊपर का जो हम पार्ट है जो हम निकाल देते हैं, निकाल करके हम फेंक देते हैं, दैट इज ओनली कॉयर. एंड कैन बी वूवन. वूवन मतलब जो वो उसका हार्ड पार्ट होता है, जो हम छील करके जिसके अंदर से कोकोनट का हम फ्रूट निकाल लेते हैं, दैट कोकोनट पार्ट, जो वो कॉयर को याद रखना है. नाउ कोकोनट कॉयर इज यूज्ड, कोकोनट कॉयर मैंने आपको बता दिया, कॉयर इज दैट पार्ट जो ऊपर से छील करके हम ऐसे जिसके अंदर से कोकोनट फ्रूट निकालते हैं, जो ऊपर का वो छिलका है, दैट इज कॉयर. कोकोनट कॉयर is used to make ropes, used to make ropes. फाइन. ये कोकोनट कॉयर को हम यूज करते हैं टू मेक रोप्स एंड मैट्स. रोप्स भी बना सकते हैं इससे, और इससे हम मैट्स भी बना सकते हैं एंड मैट्स. फाइन. So these are some uses of coconut. Means you can see that coconut tree is क्वाइट यूजफुल. कितना कोकोनट ट्री हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, और कि क्या क्या पार्ट हम उसके यूज कर सकते हैं. तो आई विल रिपीट इट अगेन. ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ कोकोनट ट्री
आर यूजफुल, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट। फ्रूट तो यूजफुल है ही है, फ्रूट तो यूजफुल है कोकोनट का, एज वेल एज फ्रूट के साथ साथ उसकी ट्री के ऑल द पार्ट्स कैन बी यूटिलाइज। सो फर्स्ट थिंग, द ट्रंक विल बी यूज टू मेक furniture. Now trunk is used to make furniture. This is your first one, first use of coconut tree. Now trunk is used to make furniture. Second, we can eat coconut fruit which is available, easily available everywhere, and we can make chutney of that coconut fruit. We can eat that coconut fruit. Coconut fruit को हम वैसे भी खा सकते हैं, and we can make chutney and we can use it in other dishes. Next is we can use coconut oil. Coconut oil is often very common in your surrounding. So coconut oil हम खरीदते हैं. In South India, the people are used coconut oil for cooking also. वो coconut oil को use करते हैं for cooking also. Cooking मतलब खाना बनाने के लिए भी they were utilizing that coconut oil only. तो अभी हमने क्या क्या use देखा कि trunk is used to make furniture. ये कोकोनट का जो नीचे का जो मोटा वाला हिस्सा होता है दैट इज यूज टू मेक फर्नीचर. नेक्स्ट, वी कैन ईट कोकोनट फ्रूट. हम कोकोनट फ्रूट खा सकते हैं. वी कैन मेक चटनी एंड वी कैन यूटिलाइज इट इन अदर डिशेज ऑल्सो. नेक्स्ट, वी कैन यूज कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल हम हेयर ऑयल यूज करते हैं ना, वी बाय पैराशूट कोकोनट ऑयल और डिफरेंट कंपनी के जो कोकोनट ऑयल वी आर बाइंग इट, तो वो कोकोनट ऑयल ऑल्सो. साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल इज यूज फॉर कुकिंग ऑल्सो. नाउ वी यूज दैट कोकोनट, ड्राई कोकोनट इन ड्राई फ्रूट्स एंड स्वीट्स. मिठाई बनाने के लिए भी वी यूटिलाइज इट. इनफैक्ट स्वीट डिशेज जो बनाते हैं आप लोग घर में, दैट वो स्वीट डिशेज के अंदर लाइक खीर में या हलवा जो बनाती है मम्मा, या फिर सेमिया जो बनाते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, हम वो नारियल को, जो नारियल होता है उसका जो पाउडर होता है या उसका श्रेडेड वाला जो नारियल होता है दैट इज यूज्ड. नाउ नेक्स्ट इज कोकोनट कॉयर. कॉयर मैंने बताया जब हम फ्रूट लेते हैं, ये वाला फ्रूट जो लेते हैं जो सूखा हुआ नारियल होता है जिसको हम पूजा में यूज करते हैं, उसके ऊपर के जो छिलके हम निकाल देते हैं, वो दैट ड्राइड छिलका वॉज ओनली कॉयर. उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉयर. वो जो छिलका जो उसका आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं कॉयर. क्या बोलते हैं, कॉयर. COIR. क्या बोलते हैं, कॉयर. नाउ कॉयर इज यूज टू मेक रोप्स एंड मैट्स. मैट्स क्या होता है, जो आपका डोर मैट होता है, डोर मैट बनाते हैं, और इससे रनर्स बनते हैं और रोप्स बनते हैं. रोप्स भी आपने मोस्ट कॉमनली यू हैव सीन इट. रोप्स भी आपने देखे होंगे, ऐसे कांटे कांटे वाली जो वो ऐसे रस्सी सी जो होती है, ऐसे हार्ड सी. फाइन. सो दैट ऑल्सो यू सीन. वो आपने वो रोप्स देखे होंगे. इफ़ यू वेंट टू विलेजेस, तो विलेज में वो जो वहाँ पे कॉट होती है, जो चारपाई होती है, चारपाई वो उसी वाली रस्सी से बनाई जाती है. सो दैट इज मेड अप ऑफ कोकोनट कॉयर. वो कोकोनट कॉयर से वो रस्सी बनाई जाती है. फाइन. So I hope this coconut tree and what are the useful thing about coconut tree. Okay, one more thing. As I told you, जो इसके लीफ होते हैं, somewhere जब आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दे आर सर्विंग फूड ऑन दैट लीव्स ओनली, क्योंकि वो बिल्कुल हाइजीनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है. ठीक है. अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, उसमें एक पर्सन ने खाया एंड देन फोल्ड इट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. उसके बाद वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है. अब बायोडिग्रेडेबल का है क्या है कि जब हम उसे ज़मीन में दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा. प्लास्टिक या दूसरी जो प्लेट्स होती है दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड ईजिली. तभी बोलते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करो, प्लास्टिक यूज़ मत करो. सो बायोडिग्रेडेबल मीन्स दैट कैन बी डिग्रेड, मतलब वो एनवायरनमेंट में अपने आप गुम हो जाएगा. ठीक है, गुम हो जाएगा मतलब वहाँ पे डिग्रेड हो करके वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा. तो दैट इज अनदर थिंग दैट कोकोनट लीव्स आर यूज्ड. अच्छा, और इसमें और दो तीन चीज़ें और. कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर भी होता है, वो हम ड्रिंक करते हैं, दैट मेक्स अस रिफ्रेशिंग. वो आई थिंक आई हैव नॉट रिटन हियर. एक ये दिस मच कोकोनट वाटर
make us refreshing. Fine. So you can see how many important uses of coconuts are there. कोकोनट के ट्री का कितने सारे यूजेस हैं. हाउ मैनी यूजेस आर देयर. आप कितने सारे यूजेस यू कैन ऑल्सो टेल. यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी वी कैन यूज ट्रंक पार्ट इज यूज्ड इन फर्नीचर. सेकेंडली वी ईट कोकोनट फ्रूट ऑल्सो. कोकोनट ऑयल यूज करते हैं. कोकोनट वाटर makes us refreshing. Or coconut coir is used for making ropes and mats. Now they are used for in dry fruits and sweet dishes also. So these all are the uses of coconut. So I hope you enjoyed knowing it, what are the uses of coconut tree. So now we'll come to a second useful plants, which I have told you in the beginning, that the second useful plant is what? That is neem. Now various parts of the neem tree. So I'll erase this coconut tree. I hope that you all have seen neem tree in your surrounding. Neem is quite often you will be able to see in your surrounding. You will find it out that neem tree in your surrounding. So as I told you in the beginning, what are the different uses of neem also? Neem, mango. I've taken two examples. So in that example, neem is very common tree which you find it out in your surrounding. अभी नीम के बारे में what is important? Various parts of the neem tree. Now various parts, as we have discussed various parts of coconut tree, similarly now we will discuss various parts of neem tree. We will discuss neem tree. So now what is various part of neem tree? That is its trunk, stem, leaves and many more part. So various parts of the neem trees are used to make different medicine. First of all, various parts means neem oil. Neem oil is also there. Then नीम बार्क जो होता है, जो नीम का जो पेड़ का ये दैट पोर्शन वाज देयर. ये वाला जो पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन वाला जो होता है. अब नीम ट्री इज क्वाइट बिगर. अब उसका जो ये वाला पोर्शन होता है, दैट ट्रंक पार्ट, दैट इज यूज्ड, दैट ट्रंक पार्ट इज यूज्ड टू मेक ट्रंक, लीफ, डिफरेंट पार्ट्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन. अभी नीम का मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं. अब मेडिसिन में यूज होता है नीम ट्री. नीम ट्री के डिफरेंट पार्ट, लाइक कभी उसका लीफ यूज हो जाता है, कभी उसका बार्क यूज हो जाता है, कभी नीम की आपने ये भी सुना होगा कि नीम की दातुन जो करते हैं, देयर टीथ विल बी स्ट्रॉन्गर. तो वो टीथ कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? जो टीथ के लिए होता है वो नीम ऑयल इज वेरी गुड. सो वेरियस पार्ट ऑफ द नीम. और नीम की वही जो ऑयल होते हैं, जो नीम का ट्री का एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज यूज्ड इन toothpaste also. Now various parts of the neem trees are used to make different medicines. Fine. So neem ke different neem tree is used to make different medicines. Fine. Different parts of neem tree is used to make medicine. Now neem twigs are used to brush teeth. As I told you, twigs means जो आपकी पतली स्टेम्स होती हैं, जो दातुन जो होती है, नीम की दातुन कहते हैं. इफ़ यू विल डू नीम के दातुन आप डेली करेंगे तो आपके दांत खराब नहीं होंगे. सो व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट इट कि आपको नीम की दातुन क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं वो डायरेक्टली आपके जो टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं. एक्सट्रैक्ट जब आप उसको चबाएंगे तो उसके एक्सट्रैक्ट आपके माउथ में जाएगा, आपके टीथ में जाएगा. सो इट विल मेक इट स्ट्रॉन्गर. So, the neem twigs are used to brush teeth. Fine. और नीम की जो दातुन होते हैं, that you oftenly find it out. अगर आप कभी कहीं ट्रैवल करने के लिए गए होगे, you will find it out कि स्टेशंस पे भी that is available. The people were selling it also. Now next is neem leaves are used to ward off insects. As I told you in the beginning कि उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं. और अगर उसको हम
यूज़ करते हैं घर में लाइक फॉर स्टोरेज ऑल्सो। तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को लगने नहीं देते, वीट में भी राइस में भी। वी कैन पुट दैट नीम लीव्स फॉर स्टोरेज ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो ईटन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी ये भी बहुत कॉमन है दैट नीम्स लीव्स जो है, आप अगर डेली इफ यू आर ईटिंग 2 लीव्स ऑफ नीम एवरी डे, सो इट विल मेक योर बॉडी, जो भी आपका कड़वी तो होती है, नीम के लीव कैसे होते हैं, टेस्ट वाइज मीठा तो नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, बट क्या होता है जो उसके एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी में जाते हैं, दे विल किल दैट हार्मफुल बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी। वो उनके लिए अच्छा नहीं होता, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मेडिसिन के साथ साथ नीम ट्री की जो डिफरेंट पार्ट से मेडिसिन बनती है, इससे आपका सोप भी बनता है, सोप बनता है, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट ऑल्सो, ब्यूटी प्रोडक्ट में फाइन। एंड अदर थिंग विच यू कैन मेक विद नीम, नीम ऑयल इज ऑल्सो देयर, नीम ऑयल भी होता है, दैट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। अभी नीम लीव्स आर ऑल्सो ईटन, नीम लीव्स। अब नीम लीव्स आर यूज्ड इन स्टोरेज ऑल्सो, आर यूज्ड इन स्टोरेज ऑल्सो, स्टोरेज में भी यूज करते हैं, एंड दैट इज यूज्ड फॉर ईटिंग ऑल्सो, ईटिंग ऑल्सो। एंड व्हाट एल्स, दैट इज वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, दैट इज वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। फाइन। अब घर में क्या है, आपको स्टोरेज करना है या फिर आपको उसको नीम को यूज़ करना है, लाइक आप ये देखो कि समटाइम्स व्हाट इज़ देयर कि हम नीम लीव्स को घर पे भी हैंग करते हैं, नीम लीव्स को घर पे हैंग करते हैं। उसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव, बिकॉज दैट नीम लीफ इज़ क्वाइट प्योर, जैसे मैंगो ट्री के होते हैं वो लीव्स होते हैं, दैट इज़ क्वाइट प्योर, जस्ट लाइक दैट। सो हेयर नीम के क्या क्या यूजेस हो गए, नीम ट्री के, again each part of that neem tree is utilized, find various part जो होते हैं नीम ट्री के, that is utilized to make medicine, various part of neem tree is used to utilize to make medicine. Second is neem twigs, twigs means दातुन जो होती है, दातुन्स are used to used as brush, that is used to brush your teeth. नेक्स्ट, नीम लीव्स आर यूज टू वार्ड ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए भी बहुत यूज किया जाता है। इवन जो आपके मॉस्किटो स्प्रेज आते हैं, कॉकरोचेस के जो स्प्रे आते हैं, इन दैट ऑल्सो नीम लीव्स एक्सट्रैक्ट आर देयर। सोप्स में भी होते हैं, बहुत सारे सोप्स में, मेडिमिक्स, मार्गो, दीज आर सम ऑफ द सोप, उसके अंदर भी नीम एक्सट्रैक्ट होते हैं। देन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं कि नीम वाला जो फेस वॉश होता है वो वी कैन यूज़, तो उससे क्या होता है वो स्किन को क्लीन करेगा, ये है। इट्स विद दैट ओनली, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा भी बहुत सारे सिरप भी आते हैं इन विच नीम एक्सट्रैक्ट इज देयर विच प्यूरिफाई आवर ब्लड। इन फैक्ट इट इज सेट व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, आप ब्लड को क्या छानते तो है नहीं। सो एक्चुअली क्या होता है कि नाउ अ डेज पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो वो पॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि विच इज़ अनवांटेड थिंग्स विल एंटर्ड इन आवर बॉडी, तो वो नीम लीफ क्या करती है, इट हेल्प टू प्यूरिफाई आवर ब्लड, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर देती है, उसमें जो हार्मफुल चीज़ें होती है उनको वो हटा देती है और हमारे बॉडी को क्लीन रखने में हेल्प करती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। नीम ऑयल भी यूज़ किया जाता है, नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट मेडिसिन्स एंड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऑल्सो। नाउ नीम लीव्स आर यूज्ड इन स्टोरेज ऑल्सो, मैंने आपको बताया अभी वीट है, राइस है, उसको स्टोर करने के लिए दीज नीम लीव्स वर यूटिलाइज। नाउ डिसइंफेक्टेंट मतलब जो आपके कॉकरोच और ये मॉस्किटो के स्प्रे होते हैं, in that also these neem leaves are used। तो अभी बच्चे देखो हमने बहुत सारे इसके यूजेस कर लिए, बहुत सारे यूजेस कर लिए। सो टुडे वी स्टार्टेड अबाउट 2 यूजफुल प्लांट विच इज कोकोनट ट्रीज एंड नीम ट्रीज।
So tomorrow we will continue with the next tree, which is our useful tree. So we will find it out different part of the other tree which is useful. So tomorrow again we will start with this page number 36. So that's all for today, children. I hope you have enjoyed by knowing such different uses of plants. So that's all for today. Good day, children.